all, to our audience, I would just like to introduce you. Mr. Prashant Pal is one of the founders for Pure India Trust. Pure India Trust is a non-governmental organization which is working in Delhi and which is providing opportunities for women empowerment. What motivated you to start an organization like this? So we started Pure India Trust just because of the hobby. Because I wanted to give back to the society. I always like to, help people. I thought that I am lucky that I could grow in the corporate world. I could achieve what I wanted, but it is not possible for everyone. So I thought, why not, help people, or why not do something which I really enjoy? So I decided to quit corporate life. I came back to India from Philippines in 2012 and then started Pure India Trust in 2013. And this is also, a big inspiration from Anna Hazare. And then finally, I quit corporate life in 2017. I realized that this passion is actually going to be my profession. So I decided to quit, and now I'm running it full time. And it is not only Delhi now, it is 13 states in India. What was the reaction of the people around you? What was the reaction of your family? And was there any kind of hesitation in you? When you lead a big organization and then you quit from that level, and then you are not getting good money on the end of your month. So of course it was a big challenge. It was a question from everyone in the family, friends, and everyone who is caring about me. But I do a lot of calculations. I take risk with calculative risk, you can say that. So I did a lot of backup planning, that if I fail, if I'm not successful in this domain, what will happen? What is my plan B? And how much fuel I have to survive for 2 years, 3 years, and how will I earn my own livelihood? So when I quit, I continued giving some services to corporate. I started continuing earning. So earlier it was 30 days of job, and then it was a 10 days of job, 10 days of consulting work, 20 days for the corporate social service. Eventually things moved into the right directions, and then finally I was quite financially independent, that I do not need to worry about my own salaries. Safalta, or the being success, is not a destination. It's a journey. आपको हर दिन सफल होना चाहिए, right? It is not that you cheat someone and you get something and you are happy, because one day people will realize. किसी चीज को प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन उसको बनाकर रखना अपने साथ is very important. तो आप क्या देना चाहेंगे उनके लिए मैसेज, जो लोग देख रहे हैं? तो मेरा ओपिनियन स्पेशली और मेरा सजेशंस यंग जनरेशंस के लिए ये है कि आप जितना अभी ये मोबाइल स्मार्टफोन देख कर और इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे आजू बाजू में है, तो जो बैकग्राउंड में है उसको देखना शुरू करें. बैकग्राउंड में जो चीजें जरूरी है, आपको लॉन्ग टर्म में जो आपको सफल बनाएंगी, उस चीज के ऊपर फोकस करना जरूरी है. लोगों को इस बारे में प्रेरित करें कि वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी देखें, नेगेटिविटी को कम से कम स्प्रेड करें, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा तेज स्पीड से भागती है. सच होता है ना, वो उतनी, जब तक वो अपने पैर में चप्पल पहन पाता है, तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है. महिला को अगर हम एम्पावर कर देते हैं, तो वो अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकती है, वो शिक्षा का भी ध्यान रख सकती है, हेल्थ का भी ध्यान रख सकती है, और घर में क्या खाना बनेगा उसका भी ध्यान रख सकती है. सो हमने ये ऑब्जेक्टिव रखा, और हमने देखा कि हमारे देश की 50% पॉपुलेशन, या हर दुनिया की 50% पॉपुलेशन महिलाएं हैं. तो महिलाओं में से सिर्फ अगर हम देखें तो सिर्फ हिंदुस्तान में करीब 8 से 10% महिलाएं ऐसी हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं. हाउसवाइफ्स हमारा फोकस एरिया है. उनको हम एनकरेज करते हैं कि अगर आपको बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो आप क्या बिजनेस करना चाहेंगे, और हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं होता है. उन महिलाओं को हम लोग टेस्ट करते हैं. उनका टेस्ट करने का मतलब उनका ये चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना नीड है, कितना जरूरी है इसको बिजनेस करना. जब हमें ये पता चल जाता है कि ये महिला बहुत सीरियस है, इसको बिजनेस करना जरूरी है, इसको घर चलाना है, और इसके अंदर एक आग है जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उस महिला को हम 10 से 15 हजार रुपए की ग्रांट देते हैं.
और जो लोन नहीं है उससे हम वापस नहीं लेते हैं, और उसको 1 साल तक हम मेंटरिंग करते हैं, कम से कम 1 साल, वैसे हम लोग 3 साल तक मेंटरिंग करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो महिला अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग 1700 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारी हिंदुस्तान में हैं, और उनके लगभग 70 लाख रुपए पर मंथ का नेट प्रॉफिट कमा रही हैं। वो लगभग 8 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एवरी ईयर जनरेट करती हैं। ऐसी महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ने से पहले उनकी इनकम जीरो थी, इनकम मतलब उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। दूसरा काम करते हैं हम यूथ के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए, स्पेशली बच्चे या यूथ जिनको ये नहीं पता कि लाइफ में उनका पैशन क्या है। तो हम बिजनेस में भी महिलाओं को यही एनकरेज करते हैं कि आपका पैशन क्या है, आप वो बिजनेस शुरू करिए, कोई और क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। करियर गाइडेंस प्रोग्राम है हमारा एक, जिसको हम बोलते हैं मार्गदर्शक। ये मेरी एक बुक है जो अमेजोन पर भी अवेलेबल है, और ये हम लोग हिंदी इंग्लिश में है, अभी इसको मराठी तेलुगु तमिल बाकी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। इस बुक के माध्यम से हमारा प्रोग्राम हम स्कूल्स में डिलीवर करते हैं, जहां पर बच्चों को हम 9th क्लास से ये बताने का कोशिश करते हैं कि उनका पैशन क्या है, और उनको सही रास्ता दिखाने का कोशिश करते हैं, जिससे कि 9th 10th में वो अच्छा परफॉर्म करें, 10th में सही सब्जेक्ट लें। अगर उसका स्पोर्ट्स में मन है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड स्ट्रीम में जाएं। तो मतलब आपको सिर्फ किसी दूसरे के करियर को देखकर ही अट्रैक्ट नहीं होना है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा जो गरीब परिवार से आता है, उसके सपने बड़े हैं, लेकिन उसकी आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से अगर वो नहीं कर पाता है, तो उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक। तो उसको हम पूरा हैंड होल्ड करते हैं, जिससे कि वो बच्चा आगे चलकर एक सफल सिटीजन बने, अच्छा ऑफिसर बने, अच्छा काम करे। और हमारा उद्देश्य लार्जली यही है कि हमारे जो यूथ हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उन लोगों को सही दिशा न देना, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना, उनको सफल बनाना। सर, जैसे आप वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, तो आप वुमेन को अप्रोच कैसे करते हैं, मतलब क्या सिस्टम रहता है? तो ये सबसे कठिन काम यही है, सही कैंडिडेट को चुनना। क्योंकि अगर आपने सिर्फ पैसे ही बांटने तो बहुत आसान है, कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस ही सबसे मुश्किल है। हम कम्युनिटी टू कम्युनिटी जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, जहां पर भी हमारा जो डोनर है, जो हमारा स्पॉन्सर है, वो हमें बोलता है, जहां वो बोलते हैं वहां पर हम लोकल जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है उसको अपनी टीम में लेते हैं, और उसको ये ट्रेन करते हैं कि वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी जाकर ऐसी महिलाओं से बातचीत करे, आंगनवाड़ी वर्कर से मिले, और हमारे जो फ्लायर्स हैं वो हम लोगों को देते हैं। उनको बोलते हैं कि अगर कोई भी अपना बिजनेस करना चाहता है तो ये जो फ्लायर दिया है इसी में ही फॉर्म दिया हुआ है, इसी फॉर्म को भरकर आपको कहीं भी जाना नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, बोल दो कि मैं अपना बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस जगह रहती हूँ। तो हमारा मोबिलाइजर उसके पास जाएगा, उससे बातचीत करेगा, उसके सारे फैमिली मेंबर से बातचीत करेगा, कंफर्म करेगा कि फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, उसके घर में जो बिजनेस करना है, उस बिजनेस से रिलेटेड उसको स्किल है, वो सीखना चाहती है तो सीख लेगी। और जब हमें ये कंफर्म हो जाता है जिसको बिजनेस करना है, या इवन कोई डिसेबल लोग भी हो सकते हैं, अभी हम लोग डिसेबल यूथ को भी हेल्प कर रहे हैं, हम लोग एलजीबीटी को भी कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स, तो उनका जब हमें पता चल जाता है कि भाई ये सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग उनकी एक छोटा सा एक प्रोफाइल बनाते हैं, एक 3-4 मिनट का उनका एक वीडियो बनाते हैं, जो उसे हम हमारे क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, और उनको बोलते हैं कि भाई ये सारी डिटेल्स हैं इस कैंडिडेट के बारे में, आप रिव्यू कर लीजिए। वंस आवर पार्टनर सेज ओके देन, और वो चाहें तो उनके यहाँ पर्सनली विजिट कर सकते हैं, उनसे फोन पर बात कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। वन द पार्टनर सेज ओके तो उनको हम प्रोक्योरमेंट करवाते हैं। लगभग हम 15,000 विमेन की प्रोफाइलिंग कर चुके हैं, 15,000 विमेन की प्रोफाइलिंग कर चुके हैं। उनमें से अभी तक हमने सिर्फ 1700 महिलाओं को बिजनेसेस खुलवाए हैं। ट्रस्ट इज डेफिनेटली द बिगेस्ट चैलेंज। इनिशियली जब हम लोग नई लोकेशन में जाते हैं तो हमें 2-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई करंट लोकेशन है, वहां पर बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो हमें चैलेंज नहीं होता है ट्रस्ट का। तो एक तो हो गया ट्रस्ट फैक्टर, दूसरा हो गया फैमिली। यस, फैमिली बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हमें लगता है कि भाई फैमिली में थोड़ा कुछ इशू है, तो हम उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको समझाने का कोशिश करते हैं, हम उनको बताते हैं, सास ससुर को, जो भी आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है, हस्बैंड हो कोई भी, उनको समझाते हैं कि इनको बिजनेस करने से क्या फायदा है, और हम उनको
वो बिजनेस नहीं करवाते जिसके लिए उनको घर से बाहर रोज जाना है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी ने शुरू किया तो उसकी सास भी उसके साथ पार्टिसिपेट करने लगी। सारे चैलेंजेस धीरे धीरे होते हैं, लेकिन जब उनको इनकम दिखती है ना कि अरे तो पैसे आने लगे, तो फिर सब लोग साथ में आने लगते हैं। तो हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम एक कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी हम लोग प्रमोट करते हैं एरियाज के अंदर। यस, चैलेंजेस आते ही हैं जब कम्युनिटी में जाते हैं। और हमारे पास एक और चीज, हमारे सभी प्रोजेक्ट्स में जितने भी मोबिलाइजर हैं वो सब मेल हैं, सब लड़के हैं। हम लोगों के पास एक भी विमेन मोबिलाइजर्स हमने नहीं रखी हैं, क्योंकि हमारे पास ये बात आती है ज्यादातर लोगों की। लेकिन हम उनको सबको ट्रेन करते हैं, हमारी कंप्लायंसेस है, हमारी पॉलिसी है कि हमारे बेनिफिशियरी उनकी सुरक्षा में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो 0 टॉलरेंस हम लोगों की पॉलिसी है। लेकिन जब मोटरसाइकिल से उनको बार बार अलग अलग जगह जाना है तो लड़कों की सुरक्षा उतना चैलेंज नहीं है अगर कोई महिला गांव में मोबिलाइजर के रूप में अलग अलग जगह जाती है, क्योंकि हम जब किसी को लेते हैं तो उसको आसपास कम से कम 20 से 30 गांव के अंदर ट्रेवल करना पड़ता है। एक गांव से दूसरे गांव, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जाना पड़ता है। तो इस तरह से ये इश्यूज को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। Definitely. Thank you so much, sir. It was just wonderful talking to you. बहुत अच्छे से आपने आपका काम, सब चीजें बताई। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम वाइंड अप करते हैं। आपकी क्या विजन है अभी आगे प्योर इंडिया ट्रस्ट को लेकर, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं? मेरा शॉर्ट टर्म विजन तो ये है कि हम लोग 2025 तक लगभग 10,000 विमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं, और उनका अपना एक प्लेटफॉर्म जहां पर छोटे छोटे गांव के जो प्रोडक्ट हैं वो अपने आप बड़े प्लेटफॉर्म पर बेचे जा सके। महिलाएं अपने आप अपना एक मार्केट प्लेस क्रिएट करेंगी, और हम लोग लगभग 1 लाख बच्चों का करियर मेंटरिंग करना चाहते हैं। दैट इज आवर शॉर्ट टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन हमारा ये है कि हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर इस तरह की पॉलिसी मेकिंग करें जहां पर सेल्फ रिलायंट होना, आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आसान हो जाए हिंदुस्तान में।